Okay, now we will start discussing about the numerical of the electric dipole. देखो डायपोल के बारे में हमारी क्या कैलकुलेशन थी। कल हमने ये स्टडी किया था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के आसपास जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इसका कंपैरिजन भी हमने स्टडी किया था किसके साथ में, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हमने क्या क्या फॉर्मूला बनाए थे। जनरल फॉर्मूला ये था, potential due to an electric dipole at any point is given by kp cos theta upon r square. This is the potential at any point. एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करना है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिखेंगे, cos 0 is 1, then this will be kp upon r square. Potential at axial line and potential and at equatorial line will be 0, because you have to place the value of theta which is 90 degree in case of the equatorial line. Equatorial line के केस में डायपोल मोमेंट और डिस्टेंस वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, तो आंसर है 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उस केस में पोटेंशियल 0 आएगा। ओके, नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस 8 into 10 to the power minus 19 coulomb charges 8 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 8 into 10 to the power minus 19 coulomb are at 2 into 10 to the power minus 10 meter, are at 2 into 10 to the power minus 10 meter. Determine the electric potential at a distance determine the electric potential at a distance is given 4 into 10 to the power minus 6 meter from this dipole, 10 to the power minus 6 meter from this dipole. When the point is at the axis of dipole, when the point is at axis of electric dipole. Second, at equatorial line of dipole, the point when the point is at equatorial line of dipole. नेक्स्ट थर्ड, इसमें देखिए एक केस और बता रखा है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल को, नॉट डायपोल मोमेंट, इज एट 60 डिग्री, is at 60 degree from the dipole moment, is at 60 degree from the dipole moment. ओके, इस क्वेश्चन में अब गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है फॉर्मूलाज के अंदर डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखनी होगी पी, तो पी को कैलकुलेट करके रख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको इसमें बता रखा है कि दो चार्जेस का सिस्टम है, डायपोल है, सेम चार्जेस है और दोनों के बीच की डिस्टेंस बता रखी है। सो चार्ज इज गिवन 8 into 10 to the power minus 19 coulomb एंड डिस्टेंस किससे लिखी जाती है, 2a से लिखी जाती है डायपोल के बीच की डिस्टेंस को, एंड दिस इज 2 into 10 to the power minus 10 मीटर। और इससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है कितनी डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस आपको दे रखी है 4 into 10 to the power minus 6 मीटर। सो डिस्टेंस इज गिवन 4 into 10 to the power minus 6 मीटर। So first of all we will calculate potential at axial line. Axial line पे potential calculate करना है,
तो उसके लिए हमें p की वैल्यू चाहिए होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट अबाउट द डायपोल मोमेंट q into 2a. q is given 8 into 10 to the power minus 19 and 2a की वैल्यू ये रही 2 into 10 to the power minus 10. So this will be 8 into 2 16 minus 19 minus 10 minus 29. So 16 into minus 29 10 to the power minus 29 coulomb meter. This is the unit of dipole moment. तो ये हमने dipole moment को already calculate करके रख दिया. So now we are calculating the first point, potential at axial line. Potential at axial line will be kp upon r square. ये formula apply करेंगे kp upon r square. So k is given 9 into 10 to the power 9. Dipole moment अभी calculate किया था हमने 16 into 10 to the power minus 29 and divide by distance square. Distance is given. फर्स्ट डायग्राम ये होगा ना, ये डायपोल है हमारे पास और इसके सेंटर से ये r डिस्टेंस पर यहाँ पर p पॉइंट है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर. Distance is given 4 into 10 to the power minus 6. So 4 into 10 to the power minus 6 and whole square. इसका क्या कर देंगे, इसका whole square कर देंगे. ओके इसके बाद में स्क्वायर करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे. ये 9 into 16 आएगा, ये minus 29 और 10 to the power 9. This will be 10 to the power minus 20. ये minus 20 रह जाएगा, plus 9 था इसमें. डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करोगे, दिस विल बी 16 into 10 to the power minus 12. 16 से 16 कैंसिल, minus 12 को अपस्टेयर्स में लेकर के जाओगे. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 10 to the power minus 8 वोल्ट. तो एक्सियल लाइन पे इतना पोटेंशियल होगा इस डायपोल के कारण. इसकी एक्सियल लाइन पर इतने डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल होगा. इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होगा. क्योंकि फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लगाएंगे. जनरल फॉर्मूला में हम लोग ये लिखेंगे के पी कोस थीटा. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, उसके लिए डिवाइड बाय आर स्क्वायर. कोस 90 जीरो होता है तो ये जीरो आ जाएगा. ये कल डिस्कस कर लिया था हमने. अब हम लोग इसका थर्ड केस डिस्कस करते हैं. थर्ड केस कितने डिग्री पर है, एंगल किस किस के बीच में दे रखा है. तो आंसर है डायपोल मूवमेंट से इसका एंगल बता रखा है और डायपोल मूवमेंट से तो एंगल मेजर करते हैं. So this is the dipole minus q plus q and this is the direction of dipole moment. ये dipole moment की डायरेक्शन है और इसके सेंटर से यहाँ पर ये r डिस्टेंस है. ये r डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 into 10 to the power minus 6 मीटर. ये क्वेश्चन में गिवन है, इतनी डिस्टेंस की आपको कैलकुलेशन करनी है और ये p पॉइंट यहाँ पर है. थर्ड केस में एंगल कितना दे रखे डायपोल मूवमेंट से, 60 डिग्री. किसका एंगल, तो आंसर है डिस्टेंस वेक्टर का, आर वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का. ओके सो नाउ वी विल अप्लाई द डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड सी पार्ट. इसका कर रहे हैं सॉल्व. सो पोटेंशियल एट पी विल बी के पी कोस थीटा. कोस थीटा इज 60 डिग्री एंड आर स्क्वायर. ये वैल्यूज पुट करो इसमें सारी. 9 into 10 to the power 9. वैल्यू पुट करनी है तो कर लो, नहीं तो ऑलरेडी हमने ये सॉल्व कर रखा है. के पी अपॉन आर स्क्वायर. के पी अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 9 into 10 to the power minus 8. तो देखो मेरे को इस फॉर्मूला में के पी अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है और इसकी वैल्यू क्या है, 9 into 10 to the power minus 8. और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ. सो पोटेंशियल एट पी इसका हाफ कर दो, दिस विल बी 4.5. सो द पोटेंशियल at this p point which is at the 60 degree angle from the dipole moment is 4.5 into 10 to the power minus 8. तो ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा 60 डिग्री एंगल पर अगर p पॉइंट हो तो. Okay, now we will discuss about the units of dipole moment. Electric dipole moment. अभी आगे के चैप्टर्स में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा. अच्छा इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है. सबसे पहले फॉर्मूला होता है P is equal to Q into 2a. चार्ज कूलॉम और डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं
तो सबसे पहले इसकी एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट बोल सकते हो आप, दोनों सेम है। एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट कितनी आएगी इसकी, तो आंसर है कूलम मीटर। दिस इज द यूनिट। सेकंड हम लोग बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है, कूलम को किस में मेजर करते हैं सीजीएस सिस्टम में, तो आंसर है स्टेट कूलम में। स्टेट कूलम सेंटीमीटर। मीटर को किस में लिख देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में लिख देंगे। इसका सिंबल क्या होगा, स्टैट को तो STAT ही लिखेंगे, कूलम को C लिखेंगे, और सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे, स्मॉल cm से लिख देंगे। सो स्टैट कूलम सेंटीमीटर, दिस इज द सीजीएस यूनिट। और एक तीसरी यूनिट और होती है डे बाय यूनिट। डे बाय यूनिट बोलते हैं इसको। ये डे बाय यूनिट, इसको किससे लिखा जाता है, तो आंसर है इसको D से लिखा जाता है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 डे बाय यूनिट का मतलब होता है 10⁻⁻18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर। और अगर आप इसको कूलम मीटर में लिखना चाहते हैं तो कूलम मीटर में ये होता है 3.33564 3.33564 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर. So this is the relation between day by unit and stat coulomb and coulomb meter per coulomb meter. ओके तो ये हो गया, ये डे बाय यूनिट, ये सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट, तो ये इन तीनों का रिलेशन है। तो कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको अगर स्टैट कॉलम सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या आपको डे बाय में दे रखा है तो डे बाय को भी आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके अंदर ये यूनिट का भी यूज किया जाता है, डे बाय का यूज किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में डे बाय यूनिट लिखी होगी आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसआई यूनिट में। तो इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, सॉल्व करते हैं हम डे बाय यूनिट का क्वेश्चन जो दे रखा होगा। ओके, अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में बता रखे। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मूवमेंट दे रखा है 1.47 डी। 1.47 डी का मतलब क्या है, 1.47 डे बाय यूनिट। तो डे बाय यूनिट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फिर कूलम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, एन अमोनिया मॉलिक्यूल हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट an ammonia molecule has permanent electric dipole moment of 1.47 day by. Calculate the electric potential due to this molecule at a point 52 nanometer away along the axis of the dipole. So the next statement is calculate electric potential due to this dipole at 52 nanometer away along the axis of dipole, along the axis of dipole. ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, इसमें ये बता रखा है कि 1 डे बाय यूनिट का मतलब है 3.34। एग्जैक्ट वैल्यू तो 3.33564 थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये गिवन है 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ओके, अब गिवन क्वांटिटीज को लिखते हैं क्या क्या दे रखी हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायपोल मूवमेंट बता रखा है
वो डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है अमोनिया का 1.47 डे बाय। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 1.47 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर है 3.34 इंटू 10 टू द पावर -30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो डायपोल मूवमेंट है फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम मीटर। एंड डिस्टेंस इज गिवन, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, तो आंसर है 52 नैनोमीटर। कितनी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, नैनोमीटर का मतलब होता है 52 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये मीटर में हो गया, वो किलोमीटर में होगा, दोनों ऐसा यूनिट है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सिस पे कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट एक्सिस का फॉर्मूला लगाते हैं। सो पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन विल बी Kp अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं बस। सो पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू अभी लिखी थी हमने 1.47 इंटू 3.34 इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू 10 टू द पावर -30 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, व्हाट इज डिस्टेंस, 52 नैनोमीटर। सो 52 नैनोमीटर, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन विल बी 9 इंटू, नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 1.47 इंटू 3.34। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -30 प्लस 9, सो दिस विल बी 10 टू द पावर -21 डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर किया हमने, दिस विल बी 52 इंटू 52 इंटू 10 टू द पावर -18। ये -18 अपस्टेयर्स में जाएगा, +18 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन विल बी 9 इंटू 1.47 इंटू 3.34 डिवाइड बाय, आप उसी लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, मैं अलग से इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर -। अब क्या करते हैं, पॉइंट्स को भी हटा देते हैं। ये पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 100 एंड 1 डिवाइड बाय 100। तो कितनी जीरोज और होगी, 4 जीरोज और होगी, 10 टू द पावर -7 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ये -3 और -4 -7, सो दिस विल बी 9 इंटू 147 334 डिवाइड बाय 52 इंटू 52। जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी सबको ऐसा ही लिख देंगे। तो 52 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 26 आएगा। 334 को कैंसिल करोगे, दिस विल बी 167, 2 से कैंसिल होगा बस। अब और कोई कैंसिल नहीं होता नंबर, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 इंटू 147 इंटू 166 220941, ये इसका सॉल्यूशन आता है। ऑलरेडी किया हुआ है, नोट्स में आपको सेंड करूंगा, उसमें ये सॉल्व करके लिखा हुआ है ऑलरेडी। 52 इंटू 26 1352 इंटू 10 टू द पावर -7। So potential at the axial line will be 163.1 आ रहा है इसका आंसर, 163.41 163.41 इंटू 10 टू द पावर -7 वोल्ट। ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि क्या सॉल्यूशन दे रखा है। इसका सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलेगा जनरली, तो ये आंसर भी लिख सकते हैं। पॉइंट को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सो दिस विल बी 1.63 इंटू 10 टू द पावर, 2 डिजिट्स इधर शिफ्ट किए तो इसको 10 टू द पावर -5 लिख देंगे। तो मैंने पावर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बाय 2 zeros। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये इसका आंसर है। बस क्वेश्चन तो वैसे ही था, फॉर्मूला तो पोटेंशियल का ही लगाना था, डायपोल के आसपास कितना पोटेंशियल होता है एक्सियल लाइन पे। बस इसमें ये डे बाय यूनिट दे रखी थी, उस डे बाय को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, कूलम मीटर में कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये हुआ पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये सरफेसेस डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम लोग ये
पोटेंशियल सरफेसेस का यूज करेंगे इसको समझने में। तो बेसिक डेफिनेशन सुनिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, नाम से पता लग रहा है इक्वी पोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जिस पर सब जगह पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। So now the next topic of discussion is equipotential surfaces. Equipotential surfaces are the surfaces which have same potential in the on the surface या in the volume of the conductor। तो हम लिखेंगे इसमें in the volume of conductor। ये मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा, कुछ कैलकुलेशंस है हमारे पास जिससे हम इसको प्रूफ करके बता सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, ये एक शेल है, स्फेरिकल शेल है। शेल में क्या होता है, शेल में सिर्फ आउटर सरफेस होता है, अंदर से ये होलो होता है। तो हम जो भी चार्ज इसमें भरेंगे वो चार्ज कहाँ रहेगा, तो आंसर है वो सरफेस पे रहेगा। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल जितना सरफेस पर होगा इसके, वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा। शेल की बजाय आप स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, पूरा अंदर से सॉलिड है। तो इसमें भी क्या होगा, जब आप चार्ज इसके सेंटर में भरोगे तो रिपल्शन फोर्स के कारण वो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। और सरफेस पर जाकर के भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये ऐसा एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो ही आएगा। ये हम लोग गोस थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होगा। तो ये कंपैरिजन याद रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जितना सरफेस पर होता है उतना ही इनसाइड होता है। तभी तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, सेम पोटेंशियल इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। पूरे वॉल्यूम में सेम पोटेंशियल होगा। अगर इसमें जितना भी चार्ज है, यहाँ पर अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो अंदर सेंटर पर भी 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, सब जगह पर 10 वोल्ट पोटेंशियल, पूरी वॉल्यूम में 10 वोल्ट पोटेंशियल। तो ऐसे सरफेसेस को क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंडक्टर्स को, ऐसे सरफेसेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जिसके सरफेस पर या पूरी वॉल्यूम में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। इसको प्रूफ करेंगे हम, अभी तो आप सिर्फ स्टेटमेंट याद रखिए ये वाली। सेकंड, अगर सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन सरफेस इज जीरो। तो जैसे कि हमने अभी एक सरफेस कंसीडर किया था, यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस पे जितना भी चार्ज है उसके कारण इसके सरफेस पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है। तो मैं एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को उठा करके यहाँ से इस पोजीशन पर लेकर के आता हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल, ये ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, ये वीबी। तो पोटेंशियल एट ए इज वीए, पोटेंशियल एट बी इज वीबी, और दोनों पोटेंशियल कितने हैं, 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। और इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू जीरो। और वर्क डन बताएंगे, वर्क डन इन मूविंग, work done in moving a charge from one point to another on the surface, one point to another on surface। तो हम किसी भी चार्ज को सरफेस पर घुमा रहे हैं, ए पॉइंट से उठा करके बी पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं ऐसा, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, तो आंसर है वर्क डन आएगा जीरो। क्यों आएगा, इसको पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैसे लिखा जाएगा, तो आंसर है वीबी माइनस वीए से लिखा जाएगा, और डिवाइड बाय चार्ज, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, चार्ज, तो पोटेंशियल हो जाएगा। और वर्क डन को लिखेंगे वीबी माइनस वीए से, और वीबी माइनस वीए कितना आ रहा है, वीबी माइनस वीए आ रहा है जीरो।
so the work done in moving the charge from A to B is 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो चार्ज को यहाँ से यहाँ उठा करके यहाँ लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन मान लो, प्रॉपर्टी मान लो, एक ही बात है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द सरफेसेस ऑन विच या इनसाइड द कंडक्टर द पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में पोटेंशियल सेम रहेगा और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप दो पॉइंट लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाने में जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। नेक्स्ट, जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं they are always normal to the electric field lines। equipotential surfaces are always perpendicular बोल दो या normal बोल दो, एक ही बात है। are always, इसको डायग्राम में दिखाते हैं हम लोग, are always perpendicular to the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये कंडक्टर है, यहां से फील्ड लाइन अराइज होंगी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स जाती हैं। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कंडक्टर के सरफेस से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ये कितना होंगी? ये हमेशा इसके साथ क्या होंगी? सरफेस के साथ, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी हमेशा। So these are the some properties of equipotential surfaces। और कोई भी दो पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। No two equipotential surfaces intersect each other। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल के दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक ही पॉइंट पर दो वैल्यूज आ जाएंगी पोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अगर वो एक ही चार्ज से अराइज हो रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर वो एक ही चार्ज से अराइज हो रहे हैं तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके डायग्राम्स को समझिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि कैसे ड्रॉ किए जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन रूल्स को अप्लाई करके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास है पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिजाइन करने हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि सरफेस हमेशा फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और कोई भी सरफेस क्या नहीं करनी चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। सो हियर आई एम मेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है। फील्ड लाइंस दिखाते हैं पहले। दीज आर द फील्ड लाइंस व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द प्लस चार्ज एंड मूविंग रेडियली आउटवर्ड्स। और फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स जा रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाता हूँ। ये पहला सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी तरह से ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अब इनकी नेमिंग करता हूँ और कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सरफेस है ए, ये जो दूसरा बनाया बी, और ये तीसरा जो सरफेस बनाया दिस इज सी सरफेस। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? तो आंसर है KQ/R। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है इस डायग्राम में? तो आंसर है ए सरफेस का। फिर पोटेंशियल कम हो जाएगा बी का, फिर और कम हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएंगे? सी पे। तो एग्जांपल लेते हैं। यहां पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सेकंड सरफेस पर पोटेंशियल है 8 वोल्ट, नेक्स्ट सरफेस पर पोटेंशियल है 6 वोल्ट। और कितने कितने मीटर की डिस्टेंस पर बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ये बनाए गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सामने आएगी, किसकी? पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि पोटेंशियल का डीग्रेड हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना एज वी आर मूविंग फार अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा।
तो यहाँ पर ए सरफेस पर, ये जो ए सरफेस है यहाँ पर मैंने पोटेंशियल लिखा है 10 वोल्ट, बी सरफेस का पोटेंशियल है 8 वोल्ट और सी सरफेस का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो एज पर द डायग्राम, और यू कैन से दैट फॉर्मूला, if distance is increased then potential will decrease. So here we will write potential at the surface A will be greater than the potential at the surface B, and it is also greater than potential at the surface C. तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, फिर कम, फिर कम। अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ किसी चार्ज को लेकर के, तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल होता है 10 वोल्ट। अब 1 मीटर दूर चला जाता हूँ, 1 मीटर आगे चला जाता हूँ, तो पोटेंशियल 2 वोल्ट कम हो जाता है। तो मैंने बोला कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बाय द अमाउंट 2 वोल्ट इन मूविंग द डिस्टेंस 1 मीटर। तो मैं बोलूंगा हेयर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी हम इसकी डेफिनेशन को वैसे तो कल डिस्कस करेंगे, फिर भी इस डायग्राम में मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 2 वोल्ट पर मीटर, और कम हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। ग्रेडियंट का मतलब वैसे तो नेगेटिव ही होता है, तो माइनस तब लगाएंगे जब हम लिखेंगे दैट पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बाय द 2 वोल्ट पर मीटर। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख रखे तो इसका मतलब ऑलरेडी ये नेगेटिव वैल्यू ही है, ऑलरेडी ये नेगेटिव वैल्यू ही है, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है। तो 1 मीटर आगे जाने पर 2 वोल्ट पोटेंशियल कम, फिर 1 मीटर और आगे जाएंगे 2 वोल्ट पोटेंशियल कम, फिर 1 मीटर और आगे जाएंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा 4 वोल्ट, फिर 1 मीटर जाएंगे पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट, फिर 1 मीटर और आगे जाएंगे पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। तो पर मीटर डिस्टेंस पर 2 वोल्ट पोटेंशियल कम होता जा रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अब हम कुछ और पोटेंशियल सरफेसेस को डिजाइन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, फिर डायपोल की बात करेंगे तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड, system of 2 point charges, system of 2 point charges of same nature, point charges of same nature। अगर दोनों पॉइंट चार्ज सेम नेचर के हैं तो देखिए क्या सिस्टम होगा। यहाँ पे सबसे पहले चार्जेस को डिजाइन करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस डिजाइन करने हैं हमको। ये प्लस चार्ज है और इस सिस्टम में एक और प्लस चार्ज पड़ा है, 2 प्लस चार्ज पड़े। तो हमें पता है कि प्लस से फील्ड लाइंस अराइज होंगी रेडियली आउटवर्ड, ऐसा बाहर की तरफ। और इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि फील्ड लाइन क्या करेंगी, जो इस तरफ फील्ड लाइन जा रही थी वो यहाँ जा नहीं पाएगी, यहाँ पर होगा रिपल्शन। तो इस रिपल्शन के कारण ये इस तरफ बेंड हो जाएंगी, और जो फील्ड लाइन इधर जा रही थी वो इस तरफ बेंड हो जाएगी। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन बनाया अभी मैंने। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो डिजाइन करने हैं अभी। ये न्यूट्रल पॉइंट होंगे जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में। अच्छा, अब ऐसा सरफेस बनाना है जो हमेशा इसके साथ 90 डिग्री पर हो। अब 90 डिग्री पे बनाने के लिए देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। एक तरफ से तो चलो पहले तो सर्कुलर ही बनेगा, ऐसा सॉरी स्फेरिकल सरफेस ही बनेगा पहले तो। अब सेकंड सरफेस देखो, सेकंड सरफेस यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं हम, ये देखते जाओ, ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए इसमें, ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है सब जगह पे। फिर यहाँ पर फिर से 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो आपको इस तरफ सरफेस को ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा, ये इलिप्टिकल शेप का हो जाएगा। तो ये आपको रूल फॉलो करना है कि ये सरफेस इस फील्ड लाइन के साथ हमेशा कितने डिग्री के एंगल पर दिखाया जाए, ये हमेशा इसे 90 डिग्री के एंगल पे दिखाया जाए।
तो ये 90 डिग्री के एंगल पे फील्ड लाइन दिखाई जाएगी इससे। ओके, तो इसी तरह से इसके लिए डिजाइन करते हैं। इसके लिए जब आप डिजाइन करोगे तो सेम डायग्राम बनाने, तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस तो स्फेरिकली दिखा देते हैं, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा दिखाएंगे। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड दीज चार्जेस, इन चार्जेस के आसपास ये सरफेस होंगे। ओके, अब इसमें एक कॉमन सरफेस बनाते हैं। कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस देखिए कैसा होगा, ये लास्ट में जाकर के ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस डायग्राम में इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं कि कहां कहां पर पोटेंशियल, अच्छा इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम कैसे आ रहा है। लास्ट वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, अगर हम यहां पर खड़े हैं